तो ये वो तस्वीरें थी जिसकी कल्पना न उन 242 यात्रियों ने की थी, न अहमदाबाद शहर ने की थी, न इस देश ने की थी और ना ही दुनिया में किसी ने की थी। आज दोपहर अहमदाबाद के लिए एक ख़राब दोपहर साबित हुई और एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसकी खबरें आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो आज जैसा मैंने कहा, अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला विमान हादसा हो गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट टेक ऑफ के चंद मिनटों में ही क्रैश हो गई। एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। विमान जिस तरह से देखते देखते आग के गोले में बदल गया, इस त्रासदी में किसी को जान बचाने का मौका नहीं मिला। हालांकि खबर है इस तरह की कि एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया है। खैर, उसकी बात हम करेंगे आगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की इस हादसे में अफसोसजनक मौत हो गई। हालांकि एक बार जैसा मैंने कहा कि चमत्कारिक सामने आ रही है, एक व्यक्ति के जिंदा होने की बात है। हम चाहेंगे कि शायद ऐसी कुछ और खबरें भी आ जाए। वहीं टाटा ग्रुप ने हादसे के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई है, घायलों का इलाज चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अहमदाबाद में एक साथ हो रही है और इन सब के बीच हम एज ए कंट्री, एक देश के तौर पे दुख में हैं, सदमे में हैं कि ये क्या हो गया। तो हम सब कुछ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू की पूरी बातचीत, उन्होंने क्या कहा और एयर इंडिया के सीईओ ने इस पर क्या कहा, क्योंकि ये दोनों सीधे सीधे इस मामले से जुड़े हैं। एक एविएशन मंत्री हैं, एक वो हैं जिनकी एयरलाइन है, वो सुनाते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. I would like to express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families and loved ones. I know that there are many questions, and at this stage I will not be able to answer all of them, but I do want to share the information we have at this time. Air India flight AI-171, operated with a Boeing 787-8 aircraft, travelling from Ahmedabad to London Gatwick, has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. Of the passengers, 169 are Indian nationals, 53 are British nationals, there are 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national. The injured passengers have been taken by local authorities to the nearest hospitals. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. We know that many people are concerned for the welfare of their loved ones. We have set up a special helpline that friends and family can reach us at. The number is 1-800-5691-444. That is 1-800-5691-444. We understand that people are eager for information. And please know that we will continue to share accurate and timely information as soon as we can. But anything we report must be accurate and not speculative. We owe that to everyone involved. For now, our teams are working around the clock to support passengers, crew and their families, as well as investigators, however we can. इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सब ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, दुख जाहिर किया है, पूरा फुल एक्शन करने की बात कही है। देश की राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, पहुंच चुके हैं, एविएशन मिनिस्टर वहां पहुंच चुके हैं, जिनका कथन आपने सुना। चलिए मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या, जिन लोगों के लिए शायद पूरी तरह से वो नहीं देख पाए दिन में ये पूरी चीज़। तो
देखिए नहीं, उससे पहले वो तस्वीर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो चंद सेकंड ही हैं, वो चंद मिनट भी क्या कहूँ। एक टेक ऑफ हुआ है अहमदाबाद के रनवे से, और उसके बाद ये आग के गोले में, ये देखिए ये विमान है जो उड़ा, और उड़ने के 2 मिनट के अंदर ही ये वापस नीचे आया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। आप कल्पना कीजिए कि क्या हुआ होगा सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर। अब वो कैसे घटा वो आपको दिखाते हैं एक एनिमेशन के ज़रिए। ये तो हो गई वो तस्वीर जो कि आपने देखी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ़्लाइट थी, जो कि वहाँ के गेटविक एयरपोर्ट पर उतरनी थी। हीथ्रो और गेटविक 2 एयरपोर्ट हैं लंदन में, तो ये गेटविक पे जानी थी एयर इंडिया का विमान, और ये रनवे नंबर 23 से उड़ा 1:39 पर समय पे उड़ी ये फ़्लाइट, और चंद मिनट बाद ही ये नीचे आने लगी। 242 लोग इसके अंदर सवार थे, क्रू सहित 230 तो पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। और 2 या 3 मिनट के अंदर जब इसके जो लैंडिंग गियर्स यानी इसके जो पहिए हैं वो भी विमान में अंदर नहीं गए थे कि इसने नीचे आना शुरू किया, और देखते ही देखते 1-2 मिनट के अंदर ये जो एयरपोर्ट के पास में बिल्डिंग्स थी उसमें जाके क्रैश हो गई। 50 टन ईंधन इसमें था, और वो एक साथ जला। वो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से एक पूरा आग का गुबार उठा और पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। बेहद दुखद ये हादसा, बेहद दर्दनाक ये हादसा, लेकिन अब हो गया है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके संभावित कारण हो सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता था, ये तमाम चीज़ें हैं। और अभी भी देखिए वहाँ अहमदाबाद में सब कुछ रुक नहीं गया। अभी भी वो जो पूरी साइट है, क्योंकि एक रिहायशी इलाके के ऊपर गिरा है, जैसा मैंने कहा कि वैसे तो संभावना कम है कि कोई इसमें बचाओ, लेकिन 1-2 कहानियाँ निकल कर आ रही हैं, 1-2 बातें निकल कर आ रही हैं कि 1-2 मिराकलस इन्हें चमत्कारी यहाँ पर जाने भी बची हैं। उनकी पुष्टि हम धीरे धीरे करते हैं इस कार्यक्रम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी जुड़ रहे हैं, रोहन सिंह भी होंगे, लेकिन हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट AVM PR सिन्हा साहब हैं, NDRF के पूर्व DG संजय कुमार साहब हैं, और एविएशन एक्सपर्ट अभिषेक कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक ताज़ा अपडेट मैं अहमदाबाद से ले लेता हूं। इस वक्त वहां क्या सिचुएशन है, लगातार हमारे साथ केतन दिन भर से बने। केतन, अहमदाबाद से कोई नया अपडेट? देखिए, जिस वक्त यहाँ पर यह हादसा हुआ तब से हम यहाँ मौजूद हैं, और अभी ये मेघाणी नगर का एरिया आप देखिए कि बिल्कुल स्मशानवत हो गया है। लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला गया है। सिर्फ यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, FSL, कमांडो और इत्यादि सब लोग हैं। गृह मंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, और आधे घंटे पहले यहाँ 2-3 और लाश यहाँ मिली हुई है, जिनको अभी साइड में किया गया है, जिसको हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन तफ्तीश जारी है, और गृह मंत्री को हमारे एविएशन मंत्री नायडू जी ने भाई ब्रीफ किया कि आखिरकार ये प्राइमरीली किस तरह से ये पूरी घटना हुई, कितने लोग सवार थे, क्या क्या पूरा ये था। तो जितने भी पुख्ता सबूत के तौर पर जो भी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पर जहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग जो आप भी जिक्र कर रहे थे जिनका, वहाँ पर अभी देखिए पुलिस का एक दस्ता है वहाँ पहुँचा है, तो वहाँ पर अगर कुछ सुराग मिल जाए तो वो ढूंढने का काम जारी है। बाकी आप यहाँ अलग अलग देख सकते हैं कि जो ये मलबा बिखरा हुआ है, एक इंजन यहाँ जो हमने पहले दिखाया था, ये सारे मलबे को धीरे धीरे अब यहाँ से हटाया जाएगा, और उसमें से कुछ अगर सुराग मिले तो उनकी जांच में भी कुछ मदद मिल जाए, इस तरह का एक आशय है। लेकिन ऑपरेशन है वो यही पूरी रात चलने वाला है। जी, क्विकली एक सवाल मैं आपसे और ले लेता हूं केतन, आप क्योंकि ऐसी खबरें अब लगातार आएंगी, इनकी पुष्टि होती है नहीं होती है। हालांकि ये खबर जो है वो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के हवाले से है, जो मीडिया को मिली है सभी न्यूज़ एजेंसीज को, कि एक व्यक्ति हैं जो कि NRI स्टेटस रखते हैं, वो इस हादसे में बच गए हैं। देखिए, यहाँ पर एक चर्चा भी हो रही थी, उनको सिविल हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड बनाया है, जो हमने सुनी है उस बात के मुताबिक वहाँ पर रखा गया है। तो वो एक सबसे बड़ा आई विटनेस होगा कि प्लेन के अंदर क्या क्या हुआ था लास्ट मोमेंट में। तो अभी उनको स्वस्थ करने में प्रशासन लगा है, ऐसी एक खबरें आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये सुखद आश्चर्य होगा और एक अच्छी बात होगी कि कम से कम एक व्यक्ति की जान तो बच गई। जी, क्विकली रोहन, दिल्ली से कोई अपडेट इस पर?
जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जिसमें कि जो एक तरह की इंटर ग्रुप एजेंसी होगी। इसमें तमाम अलग अलग एजेंसियां डीजीसीए, बीसीएस, सीआईएसएफ, एआई, एटीसी, इन सबके सदस्य होंगे और इनका जो मुख्य काम दिया गया है ये 24 घंटे काम करेगा। तमाम अधिकारी शामिल होंगे। इनको जो मुख्य काम दिया गया है, पहले रेस्क्यू में हेल्प करना, फिर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना, पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन करना, और जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है ये जो ग्रुप बनाया गया है ये 24 घंटे काम करेगा। फिलहाल सिविल एविएशन मिनिस्टर वहां पहुंच चुके हैं, वहां जायजा ले चुके हैं। एआईबी जो एजेंसी है सरकार की जो इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी तरह के इस तरह के एक्सीडेंट्स को, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीवीआर और जो एफडीआर है, जो जिसे हम आम भाषा में हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उनमें से क्या निकल के आता है ये देखना होगा। तो ये अगले कुछ घंटों में हम जो रेकेज है उसको अच्छे से फॉरेंसिक उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कारण क्या है। बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन जब तक सरकार की एआईबी एजेंसी जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं लाती, उसमें महीने भर का समय लग सकता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, या कई साल भर का रिपोर्ट समय भी लगता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। फिलहाल जो इनिशियल रेकेज है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच करने की कोशिश की जाएगी और चूंकि रात हो चुकी है तो अगले कुछ समय जो एजेंसीज हैं उनको काफी तेज तरीके से काम करना होगा फिलहाल। जी ठीक है, मैं आप लोगों से और अपडेट लेता हूं, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं पीआर सिन्हा साहब, संजय कुमार साहब। तो सिन्हा साहब, ये घटना बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक, और हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वही बता रही हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन चूंकि आप एक एविएशन एक्सपर्ट हैं, अब देखिए, हम ये कोई मतलब ना आरोप प्रत्यारोप की बात है, ना कोई उसमें किसी की गलती ढूंढने की बात है, लेकिन मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। बर्ड हिट की भी थ्योरी है, इंजन फेलियर की भी थ्योरी है, कोई सैबोटाज की भी बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका अनुभव क्या कहता है कि बुरे से बुरा क्या हो गया होगा जो ये घटना घटी? नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत ही दुखद दुर्घटना है ये एविएशन की अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और हम सबको इसने सकते में डाल दिया है। और हमारी कंडोलेंसेस हैं उन फैमिलीज के साथ जिनके नियर और डियर वंस इस घटना के साथ थे, इस जहाज में थे, और जिनकी शायद इसमें मौत हो गई है। जो पर आपके रिपोर्टर ने जैसा बताया कि शायद एक व्यक्ति बच गए हैं, तो वो ही बहुत ही अच्छी खबर होगी। एक छोटा सा जैसे बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग निकलेगा शायद, होपफुली। और हम सोचते हैं और ऐसा समझते हैं कि शायद और कुछ बेहतर खबर आए, क्या संभावना बहुत ही कम है। और जैसा आपने दिखाया, इसकी जो फोटोग्राफ आपने दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, जो वीडियो दिखाया आपने, इससे बहुत ही क्लियर है कि जहाज जब टेक ऑफ कर रहा था अहमदाबाद से, तो टेक ऑफ तो बिल्कुल सही लग रहा है, और उसके बाद एक सर्टेन हाइट ऑलमोस्ट 400 फीट के ऊपर ग्राउंड लेवल से 670 ऑड फीट जैसा क्लेम कर रहे हैं लोग, अबव मीन सी लेवल, और वहाँ की एलिवेशन अबाउट 58 मीटर्स है, तो अबाउट 187-189 फीट जो भी होगा। तो 400 फीट तक उड़ने के बाद, 400 फीट तक तो जहाज सही उड़ा है, उसके बाद अचानक क्या हुआ जिससे कि शायद इंजन की थ्रस्ट में भी परेशानी हुई, जिसकी वजह से आगे जहाज बढ़ नहीं पाया, और उसके लिफ्ट में भी परेशानी आई जिसकी वजह से जहाज ऊपर को नहीं जा पाया। और नतीजा ये था कि जहाज नीचे चलता चला गया, और चूंकि इंजन में थ्रस्ट नहीं था तो इसकी वजह से वो जहाज वहाँ क्रैश कर गया, ना वो लिफ्ट कर पाया, और ये जा करके एक रिहायशी एरिया के अंदर ही गिरा। बट हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद जो ग्राउंड पे लोग हो, वो लोग बहुत कम लोग इसमें हताहत हुए हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और तो सिन्हा साहब, इस चीज़ को, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जो विमान को एक बहुत मेजर थ्रस्ट लगता है जब वो ग्राउंड छोड़ता है और हवा में उड़ता है, और पर्टिकुलर एक स्पीड होती है, थ्रेशोल्ड स्पीड, उसके बाद ही उसको मतलब पहिए उसके अलग हटते हैं ज़मीन से और वो ऊपर उड़ जाता है। तो इतना क्लोजली कि आपको फुल थ्रोटल मिला, पूरा थ्रस्ट मिला, आपने 400 फीट की ऊंचाई भी हासिल कर ली, और फिर अचानक से सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया, सब बंद हो गया। ये कितना मतलब आश्चर्यजनक कह लीजिए, या कितना कॉमन है, या ऐसा मतलब इसकी संभावनाएं कितनी हैं कि ऐसा भी हो जाए? हाँ, एक है कि आप पूरे एयर में हैं, वहाँ जाके इंजन आपके कुछ देर में बंद हो गए, लेकिन जब कि आपने फुल पावर यूज़ कर ली और उसके जस्ट
एक आध मिनट के अंदर ही सब कुछ बंद हो गया। तो ये ऐसा है कि ऐसी संभावना बहुत कम होती है, पर ये जैसा हुआ है अहमदाबाद में शायद बर्ड एक्टिविटी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ये एक भी पॉसिबिलिटी है कि शायद बर्ड्स दोनों इंजन को ही अफेक्ट कर गई हों। ये एक पॉसिबिलिटी है, और जिसकी वजह से दोनों इंजन ही बंद हो गए हों। तो जब इंजन बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली थ्रस्ट नहीं आएगा। एक बर्ड हिट की हो सकती है, दूसरे हो सकती है एक जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, दूसरी हो सकती है कि शायद जो फ्यूल ट्रांसफर हो रहा हो उसमें कोई तकलीफ आ गई हो, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल नहीं मिल पाया। शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि जहाज जैसा आपने भी बताया कि उसने अपने अंडरकैरेज को रिट्रैक्ट नहीं किया था। जो लैंडिंग गियर्स हैं वो रिट्रैक्ट नहीं हुए थे, और उनके जो फ्लैप्स भी होते हैं वो भी नीचे ही थे, क्योंकि फ्लैप्स अपैरेंटली जैसे दिख रहे हैं शायद नीचे ही थे, क्योंकि फुल फ्लैप्स में ही आपको लिफ्ट ज़्यादा मिलती है। तो जहाज जब टेक ऑफ करती है तो वो फ्लैप्स के साथ ही टेक ऑफ करती है। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि इन एक्शंस को लेने के ठीक पहले ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसमें इंजन का थ्रस्ट भी नहीं था और लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी जहाज को, जिसकी वजह से जहाज नीचे जाना शुरू हुआ और अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया। ठीक है।